Good afternoon, students. I hope you are well, and I introduce you to our fourth chapter of main course book, that is learning to communicate, that what are the activities a child can do and what a child can't. So, if something comes to you that you have to take the decision, if you have to help someone, what will you do? If you are a child but the situation comes, how will you handle it? This is given in this lesson. So, I am going to read out a 10-year-old boy dressed. Look at this. First of all, I became a man. This is our book's name. So, a 10-year-old boy dressed in a raincoat marched out into the storm and became a man. What we have to find out, how does it happen? एक 10-year boy है, उसने रेनकोट पहना और तूफान में बाहर चला गया. मार्च आउट मीन्स वेंट आउट. ओके, मार्च आउट इनटू द स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स तूफान, थंडर. देन स्टॉर्म मीन्स rain with high speed wind. Okay, rain with high speed wind. So we have to come to the first stanza. It was the worst thing that could happen to a pampered 10-year-old boy. 8 o'clock in the evening, storm raging outside, homework still undone, home all alone. From time to time, I would hear the roar of an auto rickshaws engine and rush to the front door of our house in Quezon City, Philippines, hoping to see my mother arriving home. But it was always someone else's mom or dad. What happened? It was worst thing that could happen to a pampered 10-year-old boy. Worst means bad, worse and worst. ये जो bad का superlative degree है, सबसे खराब. Bad means खराब, worse यानी उससे खराब, worse means उससे भी खराब. So एक 10-year-old pampered boy. Pampered का meaning लिखो. Pampered मतलब जिसको बहुत लाड़ दुलार में रखा जाता है, जिसको कोई means the one who has received all the comforts of life, जिसको पता ही नहीं मुश्किलें क्या होती है. ठीक है, इसका मतलब है indulge in every comfort. ओके, हर तरह का जिसको आराम रहा हो, मिला हो, वो कहलाता है इंडल्ज, पैम्पर्ड. सो एक 10-year बॉय के साथ जो सबसे बुरा हो सकता है, जबकि वो बड़े आराम में पला बड़ा, उसके साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? क्या हुआ? 8 o'clock in the evening, storm raging outside. शाम के 8 बजे थे और बाहर तेज तूफान था. Raging means it was very severe, strong. Homework still undone. अभी तो होमवर्क भी नहीं किया था उसने. Home all alone. घर पर अकेला ही था. From time to time I would hear. This child is telling about himself. So from time to time I would hear the roar of an auto rickshaws engine. थोड़ी थोड़ी देर में मैं किसी ऑटो रिक्शा के इंजन की आवाज़ सुनता. ऑटो रिक्शा तो सब जानते हो ना. It is a carriage, that public transport vehicle
that carries people from one place to another. So public transport means auto rickshaw, सब जानते हो आप लोग. And rush to the front door of our house in Quezon City, Philippines means this is a matter of, this story is set in the country of Philippines. Philippines is a country which is made up of a number of islands. Okay, so this boy rushed to the front door of his house in Quezon City, Philippines, hoping to see my mother arriving home. उसको उम्मीद थी उसकी मम्मी जल्दी ही घर आ जाएगी, मदर जल्दी आने वाली है. But it was always someone else's mom or dad. ये हर बार किसी और के ही मम्मी या पापा की बात होती. मम मीन्स हियर मदर और डैड मीन्स फादर. तो कोई दूसरे के घर पर ही कोई रुकता था ऑटो वाला, उनके पापा मम्मी आ रहे होते थे, बट मेरे पापा मम्मी नहीं आ रहे थे, मेरी मदर नहीं आ रही थी. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट स्टैंजा? This story is set in Philippines and this boy, his house is in Quezon City. शहर का नाम है Quezon City, Philippines country का नाम है. You search this country in your map. You must be having your social book, ENV book, and try to find out Philippines on the world map. Okay. I liked to think of myself as a grown man, but fear was eating away at my bravado. The storm grew stronger. The lights went off. The clock struck 9. What happened? He wanted to think himself. I liked to think of myself as a grown man. वो ये सोचने लगा कि मुझे ग्रोन अप मैन, बड़े इंसान की, बड़े आदमी की तरह बिहेव करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए कि अब क्या करूँ मैं ऐसी कंडीशन में. बट फियर वॉज ईटिंग अवे एट माई ब्रेवेडो. लेकिन जो डर था, फियर, डर, वो मेरी बहादुरी पे, ब्रेवेडो, राइट, इट्स मीनिंग ब्रेवाडो. ब्रेवाडो मीन्स a bold manner of to show boldness. बोल्ड तो जानते हो ना, बहादुर. तो एक बोल्ड तरीका, ब्रेवरी शो करने का एक तरीका, बोल्ड तरीका, मतलब हम बिल्कुल करेजियस हो जाएं, बोल्ड हो जाएं, जो बात हमने ठान ली वो कर लें. सो ही ट्राइड टू बी करेजियस. ओके, बट फियर वॉज ईटिंग अवे एट माई ब्रेवेरी. लेकिन जो डर था वो उसकी बहादुरी को, उसके करेज को कम कर रहा था. ईटिंग अवे मतलब पुलिंग इट अवे. जो बोल्डनेस थी, करेज था, उसको दूर कर रहा था. ठीक है, दैट फियर वॉज ईटिंग अवे. ईटिंग अवे एक फ्रेज है जिसको हम कहते हैं कि कोई चीज़ कम करना, हावी हो जाना. द स्टॉर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर. तूफान और तेज हो गया. लाइट्स वेंट ऑफ. द क्लॉक स्ट्रक 9. लाइटें बंद हो गई. जब तूफान आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे यहाँ पर भी लाइट्स चली जाती है. लाइट्स व्हेन गो ऑफ, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस लाइट्स गो ऑफ. एंड इट सो हैपेंड विद दिस बॉय ऑल्सो. द क्लॉक स्ट्रक 9. और अब घड़ी में 9 बज चुके थे. ओके, eating away means
eating away. It is written together. It is a phrasal verb. It is a preposition. It is a phrase that tells us to reduce something gradually. Reduce something gradually. Okay? Reduce something gradually. So here this fear was reducing his bravery. Have you understood now? जो डर था उस बच्चे के मन में वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था as the storm was growing stronger. Okay? Then the phone rang. I swallowed my sobs and answered. It was Mom. तभी फोन की घंटी बजी. The phone rang. I swallowed my sobs. बच्चे को रोना आ रहा था उसको खुद को. So वो बच्चा कह रहा है कि मैंने अपनी sobs को रोना रोका. Swallowed. Here वैसे swallow का मतलब होता है निगल जाना. हम कोई चीज़ को बिना चबाए जल्दी जल्दी खा लेते हैं. That is called swallow. लेकिन यहाँ इस रेफरेंस में आ रहा है कि उसने अपनी रोने को रोका. ठीक है, जल्दी से अंदर उतार लिया, रोने को अंदर ले लिया, मतलब रोना बंद किया. एंड आंसर, फोन अटेंड किया. इट वॉज मॉम. फोन पर कौन थी? उसकी मदर. हेलो कार्लो, शी बिगेन. आई एम स्टिल. वो अभी मदर ने बच्चे ने कहा, मदर ने फोन अटेंड किया. मदर ने कहा हेलो कार्लो, मतलब बच्चे का नाम कार्लो है. वो क्या आवाज़ लगा रही फोन में बोली हेलो कार्लो, आई एम स्टिल. अभी तो उसने बात ही पूरी नहीं की. अरे मैं तो अभी भी. और इतनी सी बात कही उसने और बच्चे ने यानी मैंने यहाँ पर बीच में इंटरप्ट किया. इंटरप्टेड. इंटरप्ट. राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्ट. Interrupt means to stop the process. किसी काम को रोकना. ठीक है, टू स्टॉप द प्रोसेस, किसी काम को बीच में रोकना. तो फोन पे उसकी मदर बोल ही रही थी कि मैंने बीच में काट दिया. आई एम स्टिल. मम्मी ने कहा अरे मैं अभी भी. लेकिन मैंने कहा अरे वेयर आर यू. आई इंटरप्टेड. मैंने बात को बीच में ही काटते हुए बोला माँ कहाँ हो. फुली अवेयर दैट माई नर्वसनेस वॉज बिकमिंग फॉर ए ग्रोन अप. और मैं इस बात से अच्छी तरह से अवेयर था कि मेरी जो नर्वसनेस थी वो क्या थी? आई एम बिकमिंग फॉर अ ग्रोन अप. मीन्स मेरी नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा ही हो रही थी एक ग्रोन अप बच्चे के लिए. मीन्स आई वॉज बिकमिंग मोर नर्वस. ओके. आई एम हियर इन ग्लोरीज विद योर ब्रदर. मैं यहाँ पर ग्लोरी में हूँ तुम्हारे भाई के साथ. मतलब उस बच्चे का यानी कि मेरा भाई भी उसके मेरी मम्मी के साथ था. तो उसने कहा कि मैं ग्लोरी में हूँ. सी टू इट दैट व्हाट इज ग्लोरी. जी इज कैपिटल हियर. आई न्यू दैट ग्लोरी सुपर मार्केट वॉज ओनली 5 minutes फ्रॉम आवर हाउस. मुझे पता था कि ग्लोरी क्या है, यहाँ पर सुपर मार्केट है. और सुपर मार्केट तो सब जानते हैं ना, एक बिग लार्ज स्केल शॉप्स होती है एक ही कैंपस में, वेयर ऑल द goods, all the things are available in one market. All are aware that what is a supermarket. So he knew, this child knew that this Glory supermarket was only 5 minutes from our house. Okay. What time will you be at home? I asked. मैंने पूछा कि कब घर आओगी, कितनी बजे तक आ जाओगी.
unless, it was a reply from my mother, unless we get a ride, you shouldn't expect us anytime soon. तो मदर ने कहा कि अनलेस वी गेट अ राइड, जब तक हमको कोई सवारी राइड नहीं मिल जाती, मीन्स कोई रिक्शा नहीं मिल जाता, तब तक नहीं. यू शुडंट एक्सपेक्ट अस एनी टाइम सून, मैं जल्दी आ जाऊंगी ऐसी उम्मीद मत रखना. मतलब यू शुडंट एक्सपेक्ट अस एनी टाइम सून, तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम जल्दी आएंगे, यानी कि हमें देर लग जाएगी. मीन्स द वेदर इज वेरी बैड आउटसाइड, इट इज स्टॉर्मी आउटसाइड, we won't be getting any ride, means auto rickshaw, so we won't be coming soon home early. Okay, so it's enough for today, and read the lesson well so that you can understand the paragraph.